So last topic, that is close packing. Now for the close packing, first one was one dimensional close packing. Then after two-dimensional close packing. In two-dimensional, it was square close packing and hexagonal close packing. Then three-dimensional close packing. In three-dimensional close packing, that is simple cubic close packing, or it was three-dimensional close packing with the help of two-dimensional square close packing. With the help of two-dimensional square close packing. Okay. Then after Then after three-dimensional close packing second part with the help of two-dimensional hexagonal close packing. In that there were two cases. Case number one, hexagonal close packing, that is called as AB 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 type. ठीक है ना? तो लास्ट हम लोगों ने देखा था 3D close packing. Now in 3D close packing, case number one, simple cubic packing, है ना? और with the help of two-dimensional close packing. क्या था? With the help of with the help of with the help of two-dimensional square close packing. With the help of two-dimensional square close packing. सेकेंड था यहां पर with the help of with the help of two-dimensional hexagonal close packing. Okay, with the help of, तो इसमें भी केस नंबर वन, फर्स्ट वन इज हेक्सागोनल. अब देखो, when exam will ask, it will just say hexagonal close packing. Now you have to decide which one should be written. Either it is two-dimensional hexagonal close packing or three-dimensional hexagonal close packing. So whenever in exam you are writing, you will always write hexagonal close packing, ब्रैकेट में लिख लो HCP. तो HCP का मैं फिगर तो नहीं बना रहा हूं क्योंकि मैंने कल देखा था. अब फिगर इतना जल्दी तो नहीं बन सकता, इसलिए मैंने कल उसको फिनिश करके देखा था. इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर वाज 6. इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12. मैं बोल लगेगा तो मैं फिर से बता सकता हूं पार्ट कोऑर्डिनेशन. So coordination number is 12. Important one. Coordination number is 12. How coordination number is 12? मैं एक पार्ट लिख रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा. If this is hexagonal close packing, layer number 1, this is two-dimensional. Sorry, extremely sorry, because this is not the hexagonal close packing. This is square close packing. Hexagonal का मतलब था it must be in the vicinity of the first layer. This is the case.
Okay. Now next one, suppose you are taking this one. You are placing the atoms, ऐसा था, है ना? फिर से अगर मैं डाउनवर्ड पे पहले रखा था, अभी अपवर्ड पे रख देता था, तो दिस इज एग्जैक्टली पैरेलल टू ब्लैक वाले के. सी, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए बोल रहा हूं. सपोज दिस इज एटम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ब्लैक वाला. ब्लैक वाले को फिर से मैंने लिया 1, ऐसा 2, 3, 4, 5 एंड 6. रेड वाले को लो. Touching these 6, how many atoms are coming? Only 3 atoms are coming. 1, 2, 3, 4, 5, 6 के बीच में जो मेरे पास कुछ ऐसा करके जा रहे हैं. 6 को 3 सब के सब टच कर रहे हैं. इसका मतलब क्या होगा? इसके ऊपर 6 और आएगा. तो 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 ऐसा लेयर. 6 3 6 3 6 3 लेयर में you are having atoms like this one. Okay. तो बुक्स वगैरह में सोचो ये सब डायरेक्टली गिवन है, इतना मुझे समझ में नहीं आएगा, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज बुक्स वाला विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. ये क्या है? दिस इज नथिंग बट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. ये ऐसा निकल करके आ रहा है. अब सिर्फ हेक्सागोनल. ये दिस इज कॉल्ड एज नथिंग बट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. इसके बीच में जो 3 एटम्स आने चाहिए थे वो ये रहेंगे. तो इस एटम को पकड़ो. 3 ये वाले टच कर रहे हैं और 3 अभी ऊपर और आएंगे, है ना? 6 3 6 3 6 3 6 3. तो टचिंग 12 एटम्स. सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12. इतना आसान नहीं है. सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12. कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12. कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12. ठीक. नाउ द नेक्स्ट केस इसी का लो. दैट इज सेकेंड केस. फर्स्ट वन इज hexagonal close packing. Second is called as 3D का cubic close packing. मैं तुमको गारंटी देता हूं बुक्स में कुछ भी नहीं समझ में आएगा. इवन कलर्ड दिया हुआ है फिर भी समझ में नहीं आएगा. इवन सीबीएसई बोर्ड it is given but not clearly given. State board not clearly given. Okay, so please stuck with me for half an hour. कल देखा था ऐसे ही. Suppose you are having this 2-dimensional but hexagonal close packing.
ओके, 2-dimensional hexagonal close packing. This is layer number 1. This is layer number 1. Now you are having two types of voids. One is downward triangle, one is upward triangle. Okay, upward and downward triangle. तो दिस इज डाउनवर्ड अपवर्ड, ऐसे यहाँ पर है। ठीक, देखो सभी लोग, हो सकता है थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा, बट अपवर्ड डाउनवर्ड। कल अगर याद हो, मैंने जो लेयर्स रखे थे वो डाउनवर्ड पे रखे थे। ठीक, सेकंड लेयर वो तुम्हारे ऊपर है, डाउनवर्ड पे रखो या अपवर्ड पे रखो। कल का कैसा था? फर्स्ट लेयर इज 2-dimensional hexagonal close packing and atoms are placed in downward trigonal void vertex। बट जो थर्ड लेयर रखा था वो कैसा था? वो अपवर्ड ट्राइगोनल void vertex ऑफ सेकंड लेयर में रखा था। देखो अभी मैंने यहाँ पे देखो रखना स्टार्ट किया था ऐसा, डाउनवर्ड ट्राइगोनल void vertex पर। सेकेंड लेयर में भी बनेगा ना ऐसे ही, अपवर्ड डाउनवर्ड रेड वाले में। तो फर्स्ट लेयर 2D hexagonal, second layer 2D hexagonal, but placed in downward trigonal void vertex of first। सेकेंड लेयर बना, उस पर मैंने अपवर्ड ट्राइगोनल void vertex रखा, बिल्कुल पैरेलल आता था। ये देखो मैं ग्रीन से कर रहा हूं, अपवर्ड ट्राइगोनल void vertex पे रखा, ब्लू वाला एग्जैक्टली पैरेलल टू ब्लैक वाले के साथ। यहां पर ऐसा मत करो, क्या करो सब लोग प्लीज देखते रहो। हाँ, सपोज रेड एटम्स आर प्लेस्ड एट डाउनवर्ड, रखा था तो डाउनवर्ड ही रखो, तुम्हारे ऊपर है। अपवर्ड रखना चाहते हो तो अपवर्ड पे रखोगे, अपवर्ड पे रखोगे तो डाउनवर्ड पे नहीं, डाउनवर्ड पे रखेगा तो अपवर्ड पे नहीं। सपोज इट इज प्लेस्ड ऑन डाउनवर्ड, डाउनवर्ड लाइक दिस वन। ओके, ऐसा था, डाउनवर्ड पे रखा है, डाउनवर्ड पे रख रहा हूँ। हाँ? मुझे तब तक रखने रहना है, लेयर्स बनाना है जब तक ये पैरेलल नहीं आ जाए किसके, ब्लू लाइन के। जब तक ये ब्लू लाइन के पैरेलल नहीं आ जाता है। चलो देखते हैं। अगर तुमने देखो, फिर से देखो प्लीज, रेड बॉल पर, रेड बॉल पर डाउनवर्ड ट्रायंगुलर वॉइड वर्टेक्स एंड अपवर्ड, यू आर हैविंग टू। रेड वाले पर देखो, अगर तूने रेड वाले के अपवर्ड पे रखा, रेड वाले के अपवर्ड रखा ऐसा, देखो डॉटेड रख रहा हूं। रेड वाले के ऊपर अपवर्ड पे रखा, दैट इज एग्जैक्टली पैरेलल टू ब्लू लाइन, बट दैट बिकम ए बी ए बी ए बी ए बी टाइप। मुझे लाना है, देखता हूं कब ये पैरेलल आएगा। अपवर्ड पे मत रख, अपवर्ड पे रखा तो कल वाला केस हो गया। डाउनवर्ड पे रख, प्लीज सब लोग देखना स्टार्ट करो, क्योंकि यहाँ के बाद इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड मतलब विजुअलाइज। क्या करो,
फर्स्ट केस डाउनवर्ड, डाउनवर्ड पे रखा, सेकंड वाला भी डाउनवर्ड पे रखा, मींस थर्ड लेयर। डॉटेड लाइन प्लीज, ब्लैक, डॉटेड लाइन प्लीज, डाउनवर्ड ऑफ रेड, डाउनवर्ड ऑफ रेड। थोड़ा सा देखना, बहुत मिक्सअप होगा, बहुत मिक्सअप होगा। तो नाउ आई एम प्लेसिंग डाउनवर्ड ऑफ रेड, डाउनवर्ड वॉइड वर्टेक्स ऑफ रेड, डाउनवर्ड वॉइड वर्टेक्स ऑफ रेड। ठीक, डाउनवर्ड वॉइड वर्टेक्स ऑफ रेड। अब लग गया ना खिचड़ी, कुछ पद समझ में आ रहा है? ऐसा। अब तुमको एक चीज क्लियर नजर आएगा, यू आर हैविंग अगेन downward and upward void vertex of red also, of red also। ठीक, तो उतना अच्छा तो सिमेट्रिकली नहीं बना और समझना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए ये देखो, अपवर्ड, डाउनवर्ड, ठीक है, अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, ऑफ ब्लैक, ऑफ ब्लैक। हो सकता है मुझे कुछ भी ना समझ में आ रहा हो, कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैं अगर थ्योरेटिकली इसको समझाने का ट्राई करता हूँ। ठीक, तो तुम लोग को थोड़ा थोड़ा सा इतना तो आइडिया लग रहा होगा कि कौन सा पैरेलल आएगा। देखो, लेयर फर्स्ट, फर्स्ट लेयर कैसा है, ब्लू, उसमें क्या रखो, लेयर सेकंड, एंड लेयर सेकंड कहाँ रखना है, लेयर सेकंड मुझे रेड वाला रखना था, लेयर सेकंड रेड वाला रखना था, बट वो रखा था मैंने किस पर, डाउन, डाउनवर्ड वॉइड वर्टेक्स ऑफ फर्स्ट लेयर। अगर तूने लेयर थर्ड को अपवर्ड वॉइड वर्टेक्स रखा तो ए बी टाइप हो जाएगा। तो सेकंड लेयर नंबर थर्ड जो तूने प्लेस किया है वो कैसा है, डेट इज अपवर्ड नहीं, फिर से कैसा रखा, डाउनवर्ड, ओके, डाउनवर्ड वॉइड वर्टेक्स ऑफ second layer, okay। Now you are having again layer 4, you are having two option again, ब्लैक वाले के, ब्लैक वाले के डाउनवर्ड और ब्लैक वाले के अपवर्ड, जो कि थोड़ा सा समझ में कम आ रहा होगा। अब मैं प्रॉब्लम यह है कि मैं दोबारा भी नहीं कर सकता, मैं दोबारा तो नहीं कर सकता। उसमें क्या था, ब्लैक वाले को देखो प्लीज सभी लोग, ब्लैक वाले को, इसमें अगर मैं फिर से
डाउनवर्ड पर ही रखूं तो विल बी पैरेलल टू फर्स्ट लेयर। हो सकता है थोड़ा सा मैंने बोला कम हमको दिख रहा होगा। अब ये है कि इसमें मैं कोई भी लेयर हटाऊंगा तो और भी लेयर हटने लग जाएंगे। ब्लैक वाले को मैं हटाने का ट्राई कर रहा हूं, लेकिन ऐसा तो हटने वाला नहीं है भाई। देखो मैंने ब्लैक को हटाने का ट्राई किया है, फिर से मैं उसको पुट करना चाह रहा हूँ, बस ये है। देखो प्रॉब्लम ये है कि रेड वाले भी हटने लग गए। फिर से ब्लैक में रखना चाह रहा हूँ, देखो बस समझाने के लिए भाई। ओ तेरी, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जा रहा है डेफिनेटली। रेड वाले रखने का ट्राई कर रहा हूँ मैं। अब सोचो, ये अगर टेक्स्ट बुक में दिया होगा, डायरेक्टली दिया होगा तो क्या समझ में आएगा? कुछ भी नहीं समझ में आएगा। और ऊपर से उन्होंने सॉलिड बॉल करके दिया है, नीचे क्या है दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, देखो भाई फिर से देखो सभी लोग, अगर तूने अपवर्ड पे रखा ना, डेट विल पैरेलल टू ब्लू लाइन, डेट विल बी पैरेलल टू ब्लू लाइन। इसलिए मुझे कल वाला केस नहीं लाना है, अब नया केस लिखना है। तो फिर से डाउनवर्ड पर ही रख रख दिया ग्रीन। ओके, डाउनवर्ड पर ही रखा ग्रीन, इसका डाउनवर्ड इज हियर ग्रीन, इसका डाउनवर्ड इज हियर ग्रीन। मैं ट्राई कर रहा हूं इस बार फाइनली समझ में आने के लिए। आप देख रहे हो इसमें भी दो बन रहे हैं ना, ये देख, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अगर तू डाउनवर्ड वाले पे रख रहा है तो एग्जैक्टली देख, ब्लू लाइन के पैरेलल आ रहा है नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्लियर आ रहा है। मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ के डाउनवर्ड वाले पे रख तो एग्जैक्टली पैरेलल टू ब्लू लाइन आ रहा है, आ रहा है। दैट्स व्हाई फोर्थ लेयर इज प्लेस्ड डाउनवर्ड wide vertex of थर्ड लेयर। कितने लेयर बने तुम्हारे पास पैरेलल आने के लिए? फोर्थ वाला इज पैरेलल टू फर्स्ट वाले, यानी ए बी सी, फोर्थ इज अगेन ए बी सी, ए बी सी। A is blue, B is red, C is green. Again, blue wala is parallel to fourth layer if atoms are placed on downward wide vertex of black dark, जो मैंने जहां पे किया ये देखो। अगर मैं तुमको ये बोलूं कि ड्रॉ करो तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। एटलीस्ट 2 लेयर तक ड्रॉ करो सब लोग प्लीज, कल तक जैसा कल किया था सब लोगों ने। हाँ मैं दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ, वैसे समझ में आएगा ही नहीं तुम्हें। तो प्लीज एटलीस्ट 2 लेयर ड्रॉ करो कल के जैसा। पहले स्टेटमेंट लिखना है क्या? पहले स्टेटमेंट लिखना है क्या? यस प्लीज फास्ट। नहीं सर, एक मिनट। हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12, वो भी नहीं समझ में आएगा जल्दी तुझे। प्रणय कुछ समझ में आ रहा है? अब ये सोचो बेटा कि मैंने इतना समझाने के बाद ये हो रहा है, अगर डायरेक्ट मैं
मुंह से बोल बोल करके समझा देता तो क्या होता? कुछ नहीं हो सकता। Please first draw layer first two-dimensional hexagonal close packing. साइड व्यू बेटा 2D में हम नहीं ड्रॉ कर सकते इसका, है ना। 2D इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टाइप का। मैं बता रहा हूं, पहले ब्लू लाइन ड्रॉ करो सब लोग कल के जैसा। 3 लेयर तक खूब, 2 लेयर तक खूब आराम से कर सकते हो। उसमें देख कितना लिखा है, 3 घंटे का मेहनत है। थक गया हूं तब तो उसके आगे नहीं लिख पा रहा हूँ। फिर से निकालना। ओके, फर्स्ट लेयर ब्लू लाइन। सेकेंड लेयर कहां पे रखना है? डाउनवर्ड ट्राइगोनल वॉइड वर्टेक्स पे रखना है। ABC 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 टाइप। मैं लिखवा देता हूं। तो डेट विल बी 2 marks, either cubic close packing define or hexagonal close packing define in board exam. In board exam. नोट करूं क्या? नोट कराऊं मैं? यस और नो? सबने नोट कर लिया? नोट कर लिया क्या वेद? तन्वी नोट किया क्या? हाँ सर। हाँ नोट किया है। Yes, sir. चलो प्लीज राइट डाउन। एटलीस्ट अगर मैं इनकेस फिगर ना ड्रॉ करूं तो यही देखो, लिखो इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग, in cubic close packing, in cubic close packing, first layer is first layer is first layer is two-dimensional. First layer is two-dimensional hexagonal close packing. First layer is two-dimensional hexagonal close packing. Two-dimensional hexagonal close packing. And second layer is placed. And second layer is placed on. Second layer is placed on. Second layer is placed on downward void vertex. Downward void vertex. Downward void vertex of first layer of first layer of first layer of first layer and third layer and third layer is placed and third layer is placed in and third layer is placed third layer is placed
on downward void vertex of second layer. Second layer and and fourth layer and fourth layer is placed and fourth layer is placed on fourth layer is placed on downward void vertex of third layer. ठीक है ना? So first layer will be parallel to fourth layer. So by fourth layer is placed on downward void vertex of third layer. So first layer will be parallel to so first layer will be parallel to fourth layer. First layer will be parallel to fourth layer. So this arrangement is called as ABC layering. ABC layering or packing. So everywhere it will be written as CCP. Okay, cubic close packing. Cubic close packing. नीचे लिख लो coordination number is 12. Coordination number is 12. Coordination number is 12. Now, what kind of figure you are getting? सब लोग देखो. What kind of figure you are getting? स्ट्रक्चर कैसे निकल करके आएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे एक्सप्लेन करो ना, बताता हूं तो भाई रे, रुको तो वही करने जा रहा हूं. फिगर कैसे बनाया है वो समझो. फिगर कैसे बनाया है वो समझो. फिगर कैसे बनाया है वो समझो. ठीक है ना? देखो पहले ऐसे बनाना है, अदरवाइज बाद में क्या लगेगा कि ये कैसे आगे नहीं समझ में आएगा फिर से. तो बिल्कुल इसके पैरेलल यहाँ पर लाइन पे रखना है ऐसा. ठीक, डॉटेड दिखाई दे रहा है. अब मैं डॉटेड को रब कर रहा हूँ. मैं ऐसा कर रहा हूँ कि उसके पैरेलल आ जाए, बिल्कुल उसी स्ट्रीम लाइन में आए. कौन सा? ये वाला कोऑर्डिनेट. और कुछ ऐसा करो कि यहाँ पर भी उसी स्ट्रीम लाइन में आए. बताते हैं इसका रीजन क्या हो सकता है. ऐसा ये वाले तीनों पैरेलल ऐसे रहे तो ज्यादा अच्छा है. पैरेलल इन द सेंस उसी लाइन पे रहे, स्ट्रेट लाइन.
ओके, फिर से अब ज्वाइन करो दिस वन, सभी को ज्वाइन कर दिया तुमने। ज्वाइन इसको करने के बाद देखो, ब्लू लाइन इज दिस वन, रेड लाइन मैंने बोला कम समझ में आएगा बट कोई प्रॉब्लम नहीं। वन टू थ्री फोर फाइव, एक, अब देखो ये कौन कौन से हैं एटम्स, एक तो ये फेस का है, एक तो कॉर्नर्स के हो गए, सपोज यू आर टेकिंग ए बी सी डी, ठीक, तो ए बी सी डी के जो फेस थे उस फेस पर एटम इज दिस वन, ये वाला। ओके, इधर का फेस देखो, कौन सा फेस, ए बी सी डी, इसका फेस एटम इज दिस वन। ओके, मैंने इसको भी रब कर दिया, तुमको समझ में आया इसलिए। दूसरा, फिर से मेरे पास एक और फेस है, ए बी सी डी, पीछे साइड में, पीछे साइड का फेस इज दिस वन, जो दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए यहां पे रख दिया 6। वैसे तुम्हें लगेगा ये कहां से आ गया। ओके, फिर रखा था तूने ब्लैक लाइन, फिर से फेस कौन सा लिया जाए, चलो 1 2 3 4 5, चलो कौन सा फेस लो, फेस B235, फेस B235 इज दिस वन। फिर से लो 34D5, 34D5, कोई बाद में ये नहीं बोलेगा सर फिर से बता दो। अब एक फ्रंट का आइटम चाहिए तुझे, फ्रंट का कौन सा, 1 2 3 4 का, 1 2 3 4 का। अब मैं उसको कहां पे रिप्रेजेंट करूं, यहां सी पे लगा दे रहा हूं, वो उसका नहीं है, वो फ्रंट का है, ताकि तीनों लाइन में दिखे बस। अब समझ में आ रहा है, तो अब इसी को फिर से मैंने ऐसा कर दिया, उठा करके थोड़ा सा अच्छा कर दिया, उठा करके थोड़े से अच्छा बनाने के ट्राई में ये रहा। ऑल फेसेस फ्रंट एंड बैक, दिस इज नथिंग बट FCC, तो तुम्हें कहीं पे CCP लिखा है या FCC लिखा है, इस सेम। ए को पकड़ो, ए को, यहां वाले लाइन पे कितने एटम्स हैं, 6, इसके ऊपर भी कितने रहेंगे, 6, सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। ए इज सराउंडेड बाई 6 लेयर नीचे, 6 लेयर ऊपर। अब बोलो, पहले फिगर ड्रॉ करो, फिगर ड्रॉ करो, फिगर ड्रॉ करो, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12, इसीलिए मैं बोला था फिगर को आराम से देखते रहो। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12।
तुम किसी भी कॉर्नर को पकड़ करके भी समझ सकते हो, इस कॉर्नर को भी पकड़ करके समझ सकते हो कि हाउ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा। इस वाले में ज्यादा क्लियर है। 6 ब्लू वाले का 6 रेड नीचे और ऐसे ही 6 ऊपर रहेंगे। ओके, अगर नोट कर लिया है तो दिस इज क्लोज पैकिंग, दिस इज कॉल्ड एज क्लोज पैकिंग। सबसे ज्यादा तुम्हारे पास बोर्ड एग्जाम में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आता है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का मतलब ये नहीं है कि मैं 2 डायमेंशनल लिखूंगा। हाँ, 1 मार्क्स में आया है तो 1 डायमेंशनल लिखो, सॉरी 2 डायमेंशनल लिखो। नोट कर लिया क्या? तो मैं वीडियो पे आता हूँ, मैं वीडियो पे आता हूँ। हाँ, वीडियो से डेफिनेटली ज्यादा समझ में आता है, वीडियो से डेफिनेटली हमें ज्यादा समझ में आएगा। चलो लेट अस कम टू वीडियो। हाँ, वीडियो से मुझे एनी टाइम ज्यादा समझ में आएगा। आई थिंक सबने नोट कर लिया होगा। यस, हो गया। नाउ यस, आवाज आ रहा है क्या सब लोगों को? नहीं नहीं सर। सर। आवाज नहीं? हाँ, वीडियो का? नहीं सर। हाँ सर, वीडियो का आवाज नहीं आ रहा। अरे वीडियो का आवाज नहीं आ रहा है। 1 मिनट, 1 मिनट। यस यस, हाँ, फोर्थ लेयर फर्स्ट को बिल्कुल ओवरलैप करता है। जस्ट अ मिनट, हाँ प्लीज। हाँ, अब आ रहा है क्या? अभी आ रहा है क्या? नो सर। हाँ है ना? नहीं सर। नहीं सर। अच्छा नहीं ठीक है, सर। बस बस 1 मिनट, 1 मिनट। यहाँ पे है, यहाँ पे है एक्सटर्नल सेम स्पीकर।
अभी आया क्या? नहीं सर। अभी भी नहीं आया। ओके, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज कमिंग, आई डोंट नो। फेंट आ रहा है सर, बहुत हाँ बोलो। फेंट आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। मतलब बहुत फेंट आ रहा है, ऐसा क्लियरली नहीं सुनाई दे रहा। समझ नहीं आ रहा है, लेकिन सर आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? कुछ लोग बोल रहे हैं आ रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे नहीं आ रहे। बहुत कम बहुत आ रही है फेंट सर, आ लेकिन रही है। समझ नहीं अच्छा, आ रहा। बहुत फेंट आ रहा है, एक मिनट। तो और क्या हो सकता था रीजन? इधर तो सब फुल है। यस, Zoom meeting control, yes, application. No. सर वो वीडियो का वॉल्यूम चेक कीजिए एक बार। वीडियो का वॉल्यूम? अभी भी नहीं आया होगा। अब बोलो, कुछ तो कोई बोल रहा था। चालू झालं. मेरे ख्याल से अभी भी नहीं आ रहा होगा। नहीं सर। नहीं आ रहा है। यस, नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, बट व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन? सभी जगह से तो वही है। वीडियो का भी इसको अनम्यूट करने से कुछ नहीं होगा। सेटिंग टू प्ले। अभी भी वीडियो नहीं आ रहा था, आवाज नहीं आ रहा है। नहीं सर। नहीं आ रहा है। उस दिन कैसे हुआ था भाई? फिर से 1 मिनट, फिर से मैं देखता हूँ। ये हम लोग का वीडियो से ही ज्यादा समझ में आएगा।
अभी भी नहीं आया? हाँ ना बोलते रहो। नहीं सर। नहीं। हम्म, सर वो यूट्यूब का वीडियो वॉल्यूम भी फुल वो है क्या? लिंक सर आप लिंक सेंड कर दो, लिंक सेंड एक कर बार दो, फिर से हम देख लेंगे। करो बीच में। लिंक सेंड कर भी सकता हूँ, वो भी मैं कर सकता हूँ, बट सर यूट्यूब का वॉल्यूम भी फुल है क्या? यूट्यूब का भी वॉल्यूम फुल है। ये देखो बिल्कुल फुल है। अभी भी नहीं आया होगा? नहीं सर। हाँ, नहीं है। नहीं आया। स्क्रीन शेयर सेटिंग में ही देख रहा हूँ, वहां पर भी नहीं आ रहा है। सर उसके विंडो के नीचे ऑप्शन आता है बिलो द सेटिंग्स। हाँ मेरा ऊपर है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेयर कंप्यूटर साउंड देखते हैं सर वही अभी। Atoms are packed much more closely together Alright. and touch somewhere in the structure. आ रहा A है? more realistic model of this structure is the straight atoms at the 8 corners of a cube. यस और नो? आ रहा है आ सर रहा है अब। सर, आ रहा है। Simple cubic lattice is the simplest lattice structure and consists of 8 atoms at the 8 corners of a cube. In the ball and stick model shown here, the distances between the atoms are greatly exaggerated. In actuality, the atoms are packed much more closely together and touch somewhere in the structure. A more realistic model of this structure is the space-filling model. Here the size of the atoms is in correct proportion to the cell. This space-filling model demonstrates that in the case of the simple cubic lattice, the atoms touch along the edge of the cell. In the model shown here, each atom touches 3 others along the 3 edges of the cell. We can generate the unit cell of the simple cubic lattice by including only those portions of the atoms that appear inside the cell boundaries. In the case of the simple cubic cell, each atom lies 1/8 inside the cell. Since there are 8 of these fractional atoms, there is the equivalent of 1 atom inside the unit cell. The body-centered cubic lattice contains the same 8 vertex atoms as the simple cubic lattice, but with 1 body atom in the center of the cell. This simple change results in a structure that is completely different from the simple cubic lattice. Due to the atom at the center of the cell, the vertex atoms no longer touch along an edge of the cell in the space-filling model. Instead, each of the vertex atoms touches the center atom. The atoms are said to touch along the cube diagonal of the cell, which connects opposite corners of the cube. The unit cell for the body-centered cubic cell is shown here. In addition to the 8 vertex atoms, this cell contains 1 body atom that lies entirely inside the cell. This gives the equivalent of 2 atoms inside the cell. The face-centered cubic lattice contains the same 8 vertex atoms as in the simple cubic and body-centered cubic lattices, but also contains 6 atoms located in the 6 faces of the cell. In a space-filling model of the face-centered cubic unit cell, the atoms touch along the side diagonal of the cell. Each face atom touches the 4 vertex atoms that define the face of the cell. The unit cell of the face-centered cubic cell is shown here. The unit cell contains the same 8 vertex atoms as the simple cubic and body-centered cubic structures, each 1/8 inside the cell. The 6 face atoms each lie 1/2 inside the cell.
When combined with the vertex atoms, this gives the equivalent of 4 atoms inside the cell. The term coordination number refers to the number of atoms touched by a given atom inside a lattice structure. We will consider the coordination number of the simple cubic lattice first. We have already seen that in the simple cubic lattice, the atoms touch along an edge of the cell. In a single unit cell, one vertex atom touches 3 other atoms along 3 edges of the cell. To see the remaining atoms, we must look outside a single cell. The same atom also touches 3 other atoms along the edges of 3 other cells for a coordination number of 6. The coordination number of the body-centered cubic cell is more obvious. Any body atom touches 8 vertex atoms for a coordination number of 8. The coordination number for a particular structure is the same regardless of which atom is chosen. Therefore, we can also say that each vertex atom is surrounded by 8 body atoms, again giving a coordination number of 8. Last, we will demonstrate the coordination number of the face-centered cubic cell. Recall that in the face-centered cube, the atoms touch along the side diagonal of the cell. Let us first consider the coordination number of a face atom. Recall that a face atom touches the 4 vertex atoms that define the face. Each face atom also touches 8 other face atoms, 4 above and 4 below, for a total coordination number of 12. Now let us consider the coordination number of a vertex atom. Each vertex atom touches 4 face atoms within the same plane, 4 face atoms below and 4 face atoms above, again giving a coordination number of 12. In addition to the 3 cubic structures previously discussed, there are 2 close-packed structures. Close-packed structures consist of close-packed layers of atoms within which each atom is surrounded by 6 others. The difference between the 2 close-packed structures lies with the way in which these layers are stacked. In no case do 2 close-packed layers lie on top of one another. Instead, each atom sits in a dimple formed by 3 atoms in the previous layer. We will use color to represent the layers. Here, each blue atom sits in a dimple formed by 3 green atoms in the previous layer. Imagine that a second layer of green atoms is added so that it is equivalent to the first layer of green atoms. Then, a second layer of blue atoms is added that is equivalent to the first layer of blue atoms. This alternating layering of close-packed layers generates a structure that is known as the hexagonal close-packed structure. A second layering scheme is as follows. The first 2 layers are the same as before, with each blue atom sitting in a dimple formed by 3 green atoms. In this case, however, the third layer is applied in such a way that it is not equivalent to the first. If this stacking pattern is repeated, with every third layer the same, this generates a structure known as the cubic close-packed structure. The second packing pattern is called cubic for a reason. The structure is equivalent to the face-centered cube. Here we use color to illustrate the close-packed layers within a face-centered cubic cell. Let's take a moment to review. The unit cell for the simple cubic structure contains the equivalent of 1 atom inside the cell. The atoms touch along an edge of the cell and the coordination number is 6. The unit cell for the body-centered cubic structure contains the equivalent of 2 atoms inside the cell. The atoms touch along the cube diagonal of the cell and the coordination number is 8. The unit cell for the face-centered cubic structure contains the equivalent of 4 atoms inside the cell. The atoms touch along the side diagonal of the cell and the coordination number is 12. The hexagonal close-packed structure consists of close-packed layers of atoms
stacked so that every other layer is identical. The cubic close-packed structure consists of close-packed layers of atoms stacked so that every third layer is identical. This structure is identical to the face-centered cube. It therefore has the same occupancy and coordination number. कुछ समझ में आया क्या? हाँ सर. बोलो, कुछ समझ में आ रहा है क्या? उसमें भी थोड़ा सा देखो, इतना 3D लेने के बाद भी उतना जल्दी समझ में नहीं आएगा. यहाँ पे मैंने पहले ही डेमोन्स्ट्रेट करके तुम लोगों को कराया हुआ, तब जा करके मतलब कि ऐसा रहा होगा. ठीक है ना? सो दिस इज कोऑर्डिनेशन नंबर. अगर नहीं है तो डेफिनेटली मैं याद करके तो रखूंगा ही रखूंगा. Coordination number for 3D figures, definitely for the competition. 3D figures in the sense hexagonal close packing and cubic close packing. Cubic close packing and hexagonal close packing. Coordination number दोनों में is 12. Coordination number in both cases are 12. यहाँ तक बोलो किसी को भी प्रॉब्लम है तो? यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? No, sir. नहीं. ठीक है, तो एक चीज तो ध्यान में रखो सभी लोग कि in simple cubic cell atoms are touching side by side. In simple cubic cell atoms are touching side by side, but in BCC and FCC atoms are not touching side by side. Okay, कैसे टच करते हैं वो देखो. नेक्स्ट हेडिंग लिखो, रिलेशन बिटवीन edge length and radius of the atom and radius of atom. जो एटम तुम रख रहे थे उसमें क्या रिलेशन है? फर्स्ट लिया मैंने सिंपल cubic cell, that is called as SC or SCC. Now I told you earlier कि atoms are touching side by side. अभी हम लोगों ने फिगर में भी बना करके देखा था, है ना? So they are touching side by side means if you are taking any side A, B, okay, any side A, B, then this is A and this is B. ऐसा. So this is R and R. So 2R equals to side length A. This is equivalent to A. So A equals to 2R. A equals to 2R. A equals to 2R. Please note down fast. Note down fast. Okay. So in simple cubic, atoms are touching on sides. And this is not always true. This is for only simple cubic. Now next one is BCC.
नेक्स्ट वन इज BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। अभी फिगर में मैंने देखा कि सेंट्रल एटम इज टचिंग ऑल कॉर्नर्स, ठीक। सो दिस इज सेंट्रल एटम and sides are not touching each other. So suppose you are taking ये रहा और ये रहा, इसको हैश करके निकाल लो। तो दिस इज A, B, C and D। नाउ ABCD को जो तूने यहां से निकाला है, ऐसा, दिस इज AB, C, D। Please see carefully. What is the distance between B and C? Is A. But what is the distance between AB? AB, तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर तू लगाएगा, कौन सा है पाइथागोरस? A, 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 कोई भी एक फेस ले लिया, उसका ये फेस डायगोनल है, तो देखो ये कितना आ जाएगा? That will be under root 2A, and this is nothing but AB for this one. Okay, so this one is under root 2A। तो तुमको निकालना है, एटम्स तो यहाँ पे टच कर रहे हैं ना, देखो ऐसा। तो व्हाट इज BD? स्क्वायर इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ओके, सो दिस इज A स्क्वायर एंड स्क्वायर किया तो बिकम 2A का स्क्वायर। सो दिस BD विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 3A का स्क्वायर, इसका मतलब हो गया A अंडर रूट 3। नाउ important one, this is R, this is R, R, R। तो कितना हो गया? BD इक्वल्स टू 4R, BD इक्वल्स टू 4R विच इज अंडर रूट 3A। हाँ या ना? प्लीज लेट मी नो, प्लीज लेट मी नो। यस, समझ में आ रहा है सब लोगों को? तो नोट करो जल्दी से, फास्ट। नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया क्या? भक्ति, अथर्व, नोट कर लिया है? अगर नोट कर लिया है तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके, तो अभी मुझे फेस सेंटर्ड का तुम लोग घर से ट्राई करके देखना, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ फेस सेंटर्ड एंड एज लेंथ ऑफ फेस सेंटर्ड। तुमको दिखाऊंगा मैं, नीट में इसी पे प्रॉब्लम आए हुए हैं, जो अभी मैंने आर का रिलेशन लिखवा रहा हूँ।
FCC सिंपल क्यूबिक BCC का रेशियो पूछा था, एक प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम वो न्यूमेरिकल करके दिया था। ठीक, तो मैं यहाँ पर फिनिश करता हूँ टुडेज लेक्चर। ओके, थर्सडे को डेफिनेटली हम लोग का टेस्ट है। थर्सडे को हम लोग को डेफिनेटली टेस्ट है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के बाद सॉल्यूशन का टेस्ट रहेगा। उसके बाद टेस्ट अब कंटिन्यूअस रहेंगे हर हफ्ते मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि अब सारी चीजें स्टेबल हो गई हैं। 6-7 लोगों ने फिर से लॉगिन आईडी के लिए करके दिया था। स्टिल अभी आई थिंक नियर अबाउट more than 15 students are still remaining, those who are not taking part in जो भी है हम लोगों का ऐप टेस्ट होने वाला है उस पर कर रहे हैं। ठीक है ना, चलो भाई, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ विरेजा, अंडर रूट ए, वेरी गुड। FCC का 4R = बिल्कुल सही है।